Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. So this is the reading on Gaurav Tiwari. Finally, I'm sitting here wanting to do this reading. I don't know for how long I have wanted to do this reading, but it never materialized. But I also believe that things happen when it is meant to happen. So I am hoping that we will finally be able to do this reading, find out the mystery behind his death. जिनको नहीं पता है, actually Gaurav Tiwari is a very famous name when it comes to paranormal activities. अगर आपको उन चीज़ों में interest है, तो he was the the quite essential the paranormal, the poster boy of India, and quite a daredevilry था उसमें. और he used to go to all haunted places to vacate the places, and understand spirit, what they want and all those things. तो it is only fair कि जिस इंसान ने कितने लोगों को ही फ्री किया है इन सारी चीज़ों से अपनी हिम्मत की बदौलत, तो हम जाने कि उसका डेथ कैसे हो गया है. उनका डेथ हो गया था 7 जुलाई 2016 में इन अ बाथरूम. जब वो बाथरूम में थे, लोग बोलते हैं कि ही कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग और समथिंग. अपने गले को उसने स्ट्रैंगुलेशन से उनका डेथ हो गया था. लेकिन उनके डेथ के बाद उनके गले के पास एक काला द ब्लैक लाइन मिला था, जो कि एक बोलते हैं कि द स्पिरिट वर्क है. देयर इज सम स्पिरिट वर्क हियर. सो व्हाटएवर इट इज़, वी कुड नेवर फाइंड आउट व्हाट इज़ दैट. अगर आप लोगों ने उन पे कुछ वीडियोस देखा होगा तो यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. मैंने तो ज़्यादा नहीं देखा है, मैंने ज़्यादातर रिसर्च वर्क उनका देखा है, बट व्हाट पीपल से अबाउट हिज डेथ उतना ज़्यादा वीडियो नहीं देखी हूँ मैं उनके बारे में. तो एनीवेज, let's see with the blessings of Bajrang Bali, where do we get around. So let's understand the reading. Let's see कहाँ पे जाता है ये reading. God's guardians, angels, archangel Michael, spirit. I will first ground the reading, as in first understand something. God's guardians, angels, archangel Michael, spirit. Thank you so much for the divine guidance and blessings, dear angels, coming for all of us to help us know about Gaurav Tiwari's death being a natural death. What do we need to know about this? Can we have any information? We thank you so much for this. Forgiveness and opportunity. Forgiveness. What do we need to know about his death? और हमें आया है forgiveness. Forgiveness. What do we need to know about his death? Forgiveness. यानी कि we or he has to forgive somebody for his death. That is what I am getting. क्योंकि अगर किसी को किसी के डेथ के लिए forgive करना है तो this cannot be a natural thing, I guess. कुछ लोग बोलते हैं कि उनके डेथ के पहले वाइफ हस्बैंड में लड़ाई झगड़े हो रहे थे पैसे को लेके, and that's why he committed suicide. बट यहाँ पे फॉरगिवनेस आया है. यस आ सकता था, नो आ सकता था, और पीछे में है अपॉर्चुनिटी. ऑलराइट, तो किसी ने अपॉर्चुनिस्ट होके किसी चीज़ का बहाना लेके कुछ किया है, उनके साथ ये डेथ हुई है, और शायद इसीलिए फॉरगिवनेस भी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी है साथ में. सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स? Somebody took the opportunity of maybe killing him, I'm telling maybe, and somebody needs to be forgiven for this. कौन है, क्या है, अभी हमें बस थोड़ा सा ही कुछ पता चल रहा है. But okay, we have the structure on which we can base our reading and get going with this. So thank you, dear angels, for this guidance. Thank you so much. And what do we do now is, let's take this card.
What do we need to know about Gaurav Tiwari, the paranormal investigator, about his death? So we have a card here, 3 of Cups, उसके बाद है 5 of Cups, okay, and then we have subconscious level में the Star in reverse, okay, यहाँ पे 6 of Sword है. What we need to know about his death? What do we need to know about his death? 7 of Sword है यहाँ पे. 7 of Sword अगेन यहाँ पे मिस्ट्री है, ट्रिकरी है, कुछ तो साजिश की तरफ इशारा हो रहा है कॉन्शियस लेवल पे, और हमको देखना पड़ेगा वो क्या है. इन सारे कार्ड्स में फेरी टेल्स की स्टोरी है. कुछ का स्टोरी मुझे पता है, काफ़ी का नहीं पता है, तो आई विल हैव टू लुक इनटू दैट. 10 of Wands, यहाँ पे देखो स्केलेटन आ गया है, एंड वी हैव द एस ऑफ कॉइंस. पैसे का कोई एंगल आ रहा है यहाँ पे एनवायरनमेंट में, और मून का कार्ड है, एंड देन व्हाट डू वी हैव. फाइनल में है 10 of Coins. यहाँ पे भी पैसे का एंगल है. पैसे का एंगल क्यों इतना आ रहा है? देयर इज मनी हियर. फाइनल कार्ड मनी का है. सराउंडिंग में डेथ के मनी है, और हमें आया है का हमारी जो रीडिंग स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है अपॉर्चुनिटी से. बैक ऑफ द डेक में हम देखेंगे कि क्या है. द लवर्स का कार्ड, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है. ब्यूटी एंड द बीस्ट. ओके, व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड्स यार? ओके, यहाँ पे 4 of Coins है. 4 of Coins. 4 of Coins ने ये जो पक्षी रहता है, ये इसको किडनैप कर लेता है, ये तो मुझे पता है. यहाँ पे भी मनी का एंगल है. मनी मनी मनी. वी हैव गॉट 3 cards ऑफ मनी. 6 of Sword. 6 of Sword हमें ये बता रहा है कि एक तो देखो लवर्स का कार्ड बैक ऑफ द डेक में है, तो लवर्स का कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक क्या बता सकता है हमें? दिस कुड बी हिज वाइफ. कहीं कोई अंदर से तो ये एनर्जी आ रही है. और 6 of Sword है यहाँ पे. मनी की चीज़ें कुछ वाइफ के साथ ठीक नहीं चल रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे. ये तो मीडिया में भी न्यूज़ है, बिकॉज ऑफ financial things, stability, security that way. बट लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन फिर तो चीज़ें ठीक हो रही थी. 6 of Sword, it was moving towards calmer times. हालांकि लड़ाई झगड़ा तो हो रहा था, बट बेटर टाइम्स में जा रहे थे वो लोग. और अचानक से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ 3 लोग हैं. सेलिब्रेशंस है एक्चुअली यहाँ पे. तो 3 of Cups, this is the Apsaras celebrating. Really nothing really wrong with that. लेकिन सेलिब्रेशन के बाद ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि 5 of Cups डिसअपॉइंटमेंट और सौरों में बदल जाती है. तो जहाँ तक हमको पता है, ये तो हमें वही बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था. Gaurav's father and wife, and I think Gaurav also, they were sitting in the morning having tea, enjoying normal सी बातें चल रही थी. शायद कुछ बाता बाती भी हुई थी वहाँ पे. और
फिर क्या होता है कि गौरव चले जाते हैं बाथरूम में, है ना। तो ये तो उस दिन का स्टोरी हमें पता चल रहा है, बट देन व्हाट रियली हैपेंड दैट डे। यहाँ पे द स्टार कार्ड इन रिवर्स है। अब ये जिस तरह से रो रही है इस खरगोश को पकड़ के, एक्चुअली इसके द स्टोरी जो इस कार्ड का है वो ये है कि इसके भाई को आई थिंक किसी जादूगर ने खरगोश बना दिया था, एंड शी इज लाइक क्राइंग। बट ये सबकॉन्शियस लेवल में है। सबकॉन्शियस लेवल में स्टार का कार्ड एक विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, मगर यहाँ पे ओके यहाँ पे स्टार का कार्ड है गाइस, और स्टार का कार्ड उल्टा आया है, राइट। जो यहाँ पे कोई रो रहा है शायद रो नहीं रहा है, ये कुछ ड्रामा हो सकता है, एक पर्दा हो सकता है। एंड वाई एम आई टेलिंग दिस, एक तो ये कार्ड उल्टा आया है, और दूसरा जो इसके सबकॉन्शियस लेवल में कॉन्शियस जो कार्ड हमको देख रहा है वो है 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड, विच इज़ अ बिग टाइम somebody playing. Oh my goodness, how this happened. Do you see this? ये दिया बुझ गया. This really doesn't happen. और वो इस कार्ड से ही बुझा है. Like somebody, some trickery is here. ये फॉक्स भी है यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखो ये फॉक्स के पीछे कोई इंसान है. You understand? यहाँ पे कोई, I don't remember what is the story of this card. वो देखना पड़ेगा मुझे. लेकिन यहाँ पे कोई एक छुपा सा बैठा है जिसकी आकृति आप जिसका इमेज देख सकते हैं, और इसने ही उसके लाइफ को एंड किया है. क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड जो है, ना ही ये हार्डकोर कार्ड है जो बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे कोई स्नीक इन किया है. क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड अगर आप देखोगे ना, तो उसमें कोई चोरी छुपे आता है, कुछ करता है, कुछ चुराता है और वापस चला जाता है. और यहाँ पे कोई चोरी छुपे है यहाँ पे, और ये कुछ काम करके ये भाग रहा है. तो कोई आया है उसके बाथरूम में और उसको मार के गया है. 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये एयर का कार्ड है. बट एनीवेज, गिव मी अ मोमेंट, आई विल लाइट दिस दिया एंड आई विल कम बैक. ऑल राइट गाइज, तो ये तो है. सो कॉन्शियस लेवल में हमें पता चल रहा है विद द 7 ऑफ सोर्ड कि कोई तो स्नीक इन किया था उसके घर में. ओके, somebody came in their house, in his bathroom, और फिर उसने कुछ किया है और वो धूर्त की तरह देख के वो वापस भाग रहा है, जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं. कैन यू सी द कार्ड? ओके, और ये इस तरह का चेहरा बनाया है इसने कि कोई इसको देख ना ले. he has done something and he is running away. और इसने ही उसके जीवन की लीला समाप्त की है. कॉन्शियस लेवल में 7 ऑफ कार्ड, इट्स ऑफ सोर्ड, इट कैन नॉट बी नेम, एंड प्रॉब्ली दिस गाइड नीड्स टू, इसने अपॉर्चुनिटी लिया है और इसको फॉरगिवनेस का कार्ड है. तो दिस डजंट लुक्स लाइक अ नेचुरल डेथ, तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. यहाँ पे क्लियरली किसी ने स्नीक इन किया है. 7 ऑफ सोर्ड, किसी ने, कोई आके ही उसने कुछ किया है गौरव के साथ. ओके, ये तो पक्का लग रहा है. और उसने कॉन्शियस क्या, ऑल राइट, और जब उसने कुछ किया, सी दिस इज रियली टॉकिंग हियर. कॉन्शियस लेवल पे क्या हुआ है, कोई कुछ कांड करके गया है और ये देख भी रहा है कि क्या कुछ किया है इसने. और उसके बाद ही सबकॉन्शियस लेवल पे क्या है कि कोई उसको पकड़ के रो रहा है. बट देखो यहाँ पे क्या है ना कि सबकॉन्शियस लेवल से चीज़ें ऑपरेट होती हैं. इट्स नॉट लाइक कि कॉन्शियस लेवल से हो रहा है फिर, आई मीन सबकॉन्शियस लेवल से ही आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना. तो यहाँ पे शायद किसी को पता था ऑलरेडी कि कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि क्या,
एंड देन यू सी कि कॉन्शियस लेवल में आके कुछ इस तरह का काम हो रहा है। ये तो हम पकड़ रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे इतना मैरी है, इतना मैरी है। और आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज सच अ कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड कि 3 ऑफ कप्स के साथ जहाँ पे आप इतने अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे हो, अचानक से देयर इज समथिंग हैपेंस जो कि एक मातम में बदल जाता है। देख रहे हो कैसे मातम में एक सेलिब्रेशंस जो है एक मातम में बदल गया है। अब ये स्टार एंड स्टार इज अ विश फुलफिलमेंट का कार्ड, बट स्टार का कॉन्शियस लेवल के स्कीमिंग से क्या डिफरेंस रिलेशन हो सकता है कि क्या ये कुछ प्लानिंग की थी किसी ने, ये चीज़ें पता चल रहा है। प्लानिंग, ये एक तो ये दोनों कार्ड एक दूसरे को प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस स्टार कार्ड इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। यहाँ पे कोई किसी को पकड़ के रो भी रहा है जैसे कि ये इंसान अब नहीं आने वाला है, हालांकि ये दिस गाय हैज़ बीन टर्न इनटू अ रैबिट और इसके लिए काफ़ी दुख हो रहा है। और अचानक से फिर ये चीज़ें होती हैं, और फिर क्या हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में मनी का एंगल है, यू नो समबडी इज काइंड ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। और उसके बाद हम देखते हैं कि मनी किसी ने ऑफर किया है और उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा भी आ गया है घर में, यू नो लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ मनी। तो इन्वायरमेंट में जब यहाँ पे कोई सेलिब्रेट कर रहा है और चीज़ें ठीक हो गई थी, यहाँ पे वाइफ हस्बैंड में लड़ाई हो रही है लेकिन यहाँ पे क्या है कि चीज़ें ठीक हो रही थी और सेलिब्रेशंस भी हो रहा है, माने कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। अचानक से डिसअपॉइंटमेंट हुआ। अब इनके इन्वायरमेंट में क्या है कि एक ऑफर है, किसी कोई कुछ मनी का ऑफर है यहाँ पे, और उसके बाद ये मनी का ऑफर क्या चीज में, क्योंकि हमको पता है कि उनकी डेथ हो गई थी इस सारी चीज़ों के बाद, वो बच नहीं पाए थे। तो उसके बाद पैसे भी आ जाते हैं फाइनली घर में, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आ जाता है। मगर व्हाट एल्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जो डेथ हुई है यहाँ पे, जो कि कॉन्शियस लेवल पे स्कीमिंग लग रही है बिल्कुल, उसके बाद किसी ने इस गर्ल को किडनैप कर लिया, दिस कुड बी हिज वाइफ, उसको किडनैप करके लेके जा रहा है या फिर उसके कंट्रोल में है वो। यहाँ पे भी जो बीस्ट एंड ब्यूटी है ना, ये जो बीस्ट है ये ब्यूटी जो है बीस्ट के कंट्रोल में है, और यहाँ पे भी शी इज अंडर कंट्रोल। तो दिस लेडी इज इन कंट्रोल ऑफ समबडी इज व्हाट इज वी आर गेटिंग। शी इज इन कंट्रोल ऑफ दिस बीस्ट। यहाँ पे भी शी इज इन कंट्रोल ऑफ दिस बीस्ट, जहाँ पे ये जो पक्षी होता है इसको किडनैप करके लेके चला जाता है और एक पहाड़, बड़े से पहाड़ के अंदर एक छोटा सा चिड़िया लोगों का गुफा होता है ना, उसके अंदर इसको डाल देता है एंड इज़ लाइक आई वॉन्ट टू मैरी यू। पर इसमें इसका इंटरेस्ट नहीं था, इस लड़की का इंटरेस्ट यहाँ भी नहीं था, यहाँ नहीं था। तो देयर इज समबडी हु इज कीपिंग एन आई ऑन ऑल दिस थिंग्स। आई थिंक दिस लेडी जो है ना, इसका कोई there is this beast here, there is also this somebody who is beast here is keeping an eye on this beast and this couple. Looks like somebody was keeping an eye on this couple. Do you see this? How conspicuous is this? किसी ने इस लड़की पे ही नहीं, इस लड़के पे भी नजर रखा हुआ था। ओके, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स तो है ही। I don't know if this beast was somebody lover of this girl, क्योंकि उनकी शादी भी उसी साल हुई थी, क्योंकि यही एंगल यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद ये किडनैप कर लिया है इसको इसने पैसे के साथ, पैसा पैसा पैसा। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है उस दिन। यहाँ पे जब अब ये कॉन्शियस लेवल पे यहाँ पे हमें पता तो चल रहा है कि कुछ स्कीमिंग हुई है, कोई इनके घर में आया है उस दिन और वो कुछ चुरा के भागा है या फिर वो किसी को कुछ मार के भागा है, ये हमें पता चल रहा है कि कुछ स्कीमिंग है यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में, जिसके कारण डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है। पर हुआ एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ किसी को बस मार के माने कि चोट पहुँचा के भागा है। यहाँ पे स्केलेटन का आना ये हमें बता रहा है कि एक्चुअली दिस पर्सन किल्ड गौरव तिवारी। यहाँ पे जो चीज़ें हुई ना, स्नीकिंग हुई, कोई आया, दे एक्चुअली डिड किल गौरव तिवारी।
क्योंकि ये स्केलेटन का आना और फिर स्केलेटन से इतना इसके अंदर पेड़ निकल जाना हमें यही बता रहा है। पेड़ इज ऑल अबाउट ग्रोथ। तो किसी के डेथ से किसी का ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, यही तो हम चीज़ पकड़ रहे हैं। ग्रोथ, फॉरगिवनेस, अपॉर्चुनिटी। किसी ने अपने मतलब के लिए इनको मारा है और वो नज़र भी रखा हुआ था इन पे। डू यू सी द आई ऑफ दिस बीस्ट? कोई नज़र रखा हुआ था। जब चीज़ें बेटर हो रही थी तब भी नज़र थी। जब सेलिब्रेशन कर रहे हो अचानक से आता है, शायद सेलिब्रेशन के समय ही उसको अंदर आने का मौका मिल गया होगा वो रूम, आई डोंट नो, या मे बी, एंड देन दिस गाय गोज एंड फिर तो वो उसको मार देता है। इसके मरने से ही उसको पैसा मिलने वाला। सी द ट्रीज आर ऑल अबाउट अबंडेंस एंड ग्रोथ एंड मनी एंड प्रोस्पेरिटी। और यहाँ पे बार बार अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा 7 ऑफ पेंटिकल्स में जब भी हम मनी की बात करते हैं तो पेड़ को दिखाते हैं, और 9 ऑफ पेंटिकल्स ले लो, एम्प्रेस ले लो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ले लीजिए। जो पेंटिकल्स का कार्ड है, जो अर्दी कार्ड्स होते हैं, उसमें पेड़ को दिखाते हैं क्योंकि अर्थ इज द एपिटोमी ऑफ अबंडेंस, ग्रोथ, ट्री जो ग्रोथ, क्योंकि मदर अर्थ के आशीर्वाद से ही बड़े से बड़ा पेड़, बड़े से बड़ा टावर्स, बड़े से बड़े कॉरपोरेशंस, माइंस, व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। तो इसके डेथ से किसका ग्रोथ होने वाला था? ये बीस्ट जो कि इस ब्यूटी पे नज़र रखा हुआ है, और शायद ये बीस्ट जो है ब्यूटी को पसंद करता था क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स है। और यहाँ पे रैबिट ये भी बता रहा है कि इसकी नज़र इस लड़के पे थी और इस लड़की पे भी थी कि कहीं ना कहीं इससे कुछ पैसे आ सकते हैं। आई डोंट नो, दिस इज वियर्ड बट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और इसको मार के ही इसने अपना पेड़, कहते हैं ना कि जैसे कि देखो, इसको मार के ही इसने, बोलते हैं कि किसी को मार के अपने सपने बनाए हैं इस आदमी ने, अपना पेड़ उगाया है मनी का, एट हिज लाश, एट हिज डेड बॉडी, एंड दैट इज वाई this guy has done a heinous crime and he needs to be forgiven. He made an opportunity of his death. ये चीज़ें हमको पता चल रही हैं यहाँ से। अब क्या है और वो क्या जाता है यहाँ पे, देखो ये होप्स का कार्ड मून है। मून का कार्ड इज अ कार्ड ऑफ इज अ कार्ड ऑफ अ वुंड, एंड वुंड का कार्ड होप में है, यानी कि इट्स समथिंग सैड ही गेट्स टू नो अबाउट समबडी। क्योंकि मून का कार्ड इज अबाउट मोर्निंग समथिंग, फीलिंग, यू नो, एक दिल में एक कसक हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा गहरा दुख, एक वुंड, एक ट्रॉमा, वो चीज़ आ गई है यहाँ पे। और ये ट्रॉमा, दुख किसको हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे किसी का डेथ हो गया है। ये किसको ये ट्रॉमा हो रहा है? यहाँ पे जो स्टोरी है कि द पर्सन गोज बैक टू मून, वो वापस हमेशा के लिए मून पे चला जाता है। वो हमेशा से मून पे चला जाता है, यही तो है स्टोरी। पर यहाँ पे इसको पता था कि नहीं पता था कि ये वो मून में चला जाएगा? आई विल हैव टू चेक द स्टोरी ऑफ दिस कार्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक लड़की रहती है, एक प्रिंसेस ही रहती है, जो कि उसने कुछ गलती की रहती है, तो उसको मून से उसके पिताजी नीचे अर्थ पे भेज देते हैं और बोलते हैं कि तुमको तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो जाती हैं, ऐसे करके। ये बहुत अच्छे से रहती है अपने माता पिता जी के साथ यहाँ पे अर्थ पे, क्योंकि वो एक मैजिकल बच्ची थी, तो उनके लाइफ में इसके आने से काफ़ी ग्रोथ, मनी, सब चीज़ें आ जाती हैं। आसपास के लोग जलन करने लगते हैं। ये शहर चली जाती है इसके माता पिता, हालांकि ये जाना तो नहीं चाहती है शहर, क्योंकि उसको बगल में ही एक लड़का रहता था जिसको वो बहुत पसंद करने लगी थी। बट नेवरदलेस इसके माता पिता इसको लेके शहर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? There is something that happens here. And finally this
the guy or the girl kind of goes back to the moon. पर ये दोनों में काफ़ी प्यार था, पर आसपास के लोग दुश्मन थे इनके प्यार के. तो यहाँ पे भी ब्यूटी है, यहाँ पे भी ब्यूटी है. वाइफ की कुछ ऐसी मेजर गलती तो नहीं लग रही है यहाँ पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई उस पर नज़र रखा हुआ था. आसपास का लोग है या फिर उसका ही कोई लवर हो सकता है, एक्स लवर. क्योंकि ये तो अभी भी देख के मून को ना अफसोस कर रही है कि वो चला गया है हमेशा के लिए. शी इज़ काइंड ऑफ मोर्निंग. और दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग सो फार. What can we know about this? What do we need to know about his? Okay, let me take this card. यहाँ पे इसमें जिस तरह की पर्सनालिटी शो अप होगी ना, उससे हमें कुछ पता चल सकता है. What do we need to know about Gaurav Tiwari's prostitute? What does this mean? Accentuates the challenge of surviving without negotiating the power of your spirit. Accentuates the challenges of surviving without negotiating the power of your spirit. Accentuates the challenge of surviving without the power of your spirit. 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 Guidance coming for Gaurav Tiwari's death, mysterious death. What can we know to understand who killed him? Priest है, लेकिन ये उल्टा आया है ना. Violates the trust of your spiritual community. Seduced by your own spiritual role. Violates the trust of your spiritual community. Priest facilitates spiritual commitments. Actually, this is speaking volumes. यहाँ पे कुछ स्पिरिट का कनेक्शन आ गया है. और सोल का कार्ड इज अ कार्ड ऑफ एयर या एज इन की स्पिरिट. ओके, अब यहाँ पे है वायलेट्स द ट्रस्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल कम्युनिटी. स्पिरिचुअल कम्युनिटी का ट्रस्ट किसने तोड़ा है? स्पिरिचुअल कम्युनिटी का ट्रस्ट तोड़ने का क्या मतलब हो गया? Seduced by your own spiritual role. Wow, this is so strong. Oh my goodness, this is coming strong. मगर यहाँ पे फिर बीस्ट का क्या मतलब होगा? यहाँ पे तो यार ये कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें ही लग रही हैं. You know? वायोलेटिंग द ट्रस्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल कम्युनिटी, यानी कि स्पिरिचुअल जो कम्युनिटी होती है हमारी स्पिरिट वर्ल्ड के कम्युनिटी का ट्रस्ट अगर आपने तोड़ा है बिकॉज ऑफ योर ओन पैशन, ऑब्सेशन, वो रीज़न दिखाया जा रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का है कि एक्सेंचुएट्स द चैलेंजेस ऑफ सर्वाइविंग विदाउट नेगोशिएटिंग द पावर ऑफ योर स्पिरिट. यानी कि यहाँ पे दोनों ही कार्ड में कुछ स्पिरिट की बात हो रही है. यहाँ पे तो क्लियरली बताया जा रहा है कि आपने स्पिरिचुअल कम्युनिटी का रूल्स को वायोलेट किया है अपने पैशन के लिए, जो कि ऑब्सेशन बन गया था, सेडक्शन बन गया था. और यहाँ पे भी आप चैलेंज कर रहे हो कि, और जिस तरह से है यहाँ पे challenges of surviving without negotiating the power of your spirit.
दोनों में ही स्पिरिट का वर्ड आया है. दिस इज स्ट्रांग एक्चुअली. दिस इज स्ट्रांग. ओके, so we are getting some beast thing here, but then देखते हैं यहाँ से क्या आता है. मैं what can we know about Gaurav Tiwari's death, dear angels? Thank you so much for the guidance coming. Surrender the fear of change. The universe is reminding you that you are cared for always, whether you are afraid of change in your job, in your health, in your relationship, or if you fear aging or death. Repeat the affirmation, I have faith that all is well. Fear of change, death. पता नहीं उनको पता था कि कुछ इस तरह का हो रहा है उनके साथ. Complete healing. I don't know. It looks like the guy. हाँ, एक्चुअली वो परेशान तो थे. गौरव तिवारी वॉज अपसेट एंड ही वॉज टेलिंग कि कुछ तो उसको फील हो रहा है इस तरह का. सो आई थिंक ही हैड सम आइडियाज. कुछ तो अब नॉर्मल चीज़ें उनको फील हो रही होंगी, बिकॉज आई हैव रेड दिस दैट ही सेड समथिंग लाइक दैट. और यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही है कि शायद कुछ ना कुछ चीज़ें उनको फील हो रही थी, बिकॉज ही काइंड ऑफ interferes in some spiritual realm kind of a thing. यही तो हमको पता चल रहा है यहाँ पे. तो this is what we are getting to know. Okay, but what about this money ka angle and all that? Let me check this clearly. Ace of coin है. What does this mean? Ace of coin है, moon है. पता तो कुछ चल रहा है, लेकिन exactly क्या है? What I can do is I can how about taking this card and finding out the reasons for all this? What the matter is? Can we get the answers, clarifiers for these cards, dear angel? Thank you so much for giving us the clarifiers for these cards, so that we can understand things in a better way. Thank you for giving us the clarifiers. We have the card Page of Sword in reverse. यहाँ पे कुछ तो स्कीमिंग चल रही है क्या? क्योंकि हमने बात किया है कि यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है और अचानक से ही किसी का इतना डिसअपॉइंटमेंट हो जाता. बोलते हैं ना, जैसे कि सेलिब्रेशन में तब मातम जैसा बन गया था. वो मर गया था तो मातम ही था वो. तो यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है? पेज ऑफ सोर्ड क्या कुछ तो प्लान कर रहा है. पेज ऑफ सोर्ड क्या प्लान हो रहा है? चलो देखते हैं. यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे क्या है? इल्यूजन्स है. समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं. ओ माय गुडनेस, डू यू सी दिस डेथ का कार्ड? सबकॉन्शियस लेवल में डेथ क्यों आया है? आपको पता है मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था स्टार का कार्ड को, और वो जो कार्ड कॉन्शियस लेवल पे है. कॉन्शियस लेवल में देखो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसको
कि कॉन्शियस लेवल में कोई चीज़ कर रहा है, स्कीम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई स्कीमिंग हुई है, कोई कुछ करके भाग रहा है, लेकिन क्या एग्जैक्टली किया है वो नहीं पता चल रहा है। लेकिन क्योंकि एटीट्यूड के कार्ड में, इस रीडिंग के व्हाट वी नीड टू नो अबाउट हिज डेथ, एटीट्यूड में क्या हुआ है कि ये जो भी करके भागा है वो स्केलेटन बन गया है और उसी में से पेड़ उग रहा है, यानी कि किसी ने अपने ग्रोथ के लिए उसको मार दिया है बिल्कुल। तो ये जो करके भागा है, इसने किसी को चोट वोट पहुंचा के बस नहीं भागा है, ये किसी ने ये इसको मार के भागा है, ये हमें पता चल जाता है। लेकिन मैंने बोला कि जब ये कॉन्शियस लेवल में मार के भाग रहा है, सब कॉन्शियस लेवल में ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको, जैसे स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट होता है ना, यहाँ पे कौन सा कार्ड है ऐसा विश, ऐसा कैसा विश है जिसके लिए आपको किसी को स्कीमिंग करके आपने अपने घर में किसी को घुसाया है या फिर कोई घुसा है घर में, और यहां पे विश क्या आ रहा है, डेथ आ रहा है। नाउ दिस इज वियर्ड, क्योंकि हमने इनिशियल लेवल पे ही ये पकड़ा था कि क्यों यहां पे विश कर रहे हो तो उल्टे हो, और यहां पे स्कीमिंग का कार्ड क्यों आ रहा है तुम्हारे पैरेलल में। एंड यहां पे देखिए डेथ का कार्ड आ गया है, स्टार के पीछे डेथ का कार्ड आना है। आने का क्या मतलब है कि हमसे क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते, स्टार के पीछे डेथ के आने का क्या मतलब हो सकता है। चलो देखते हैं अभी क्या आने वाला है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया है। मनी की कुछ इश्यूज हो रही थी दोनों कपल में, हमें पता है, पर वो बेटर, हमने बात क्या कि दे वर मूविंग टू बेटर टाइम्स, मतलब कि हाँ पैसे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा था, लेकिन बात सुलझ जा रही थी बातचीत करके कि हाँ कुछ होगा, बेटर करेंगे, हम निकल रहे हैं। कॉन्शियस लेवल पे देखते हैं क्या होता है। 3 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। अब समझो यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये बंदा, ये जो फॉक्स देख रहे हो ना, ये कुछ करके भागा है। फॉक्स हमेशा बहुत कनिंग होते हैं, ठीक है, वो कुछ लेके भागते हैं। तो यहाँ पे देखो जो करके भागा है उसका रिजल्ट क्या है, 3 ऑफ सोर्ड। और ये जो कार्ड, ये सोर्ड जो है ना, यहाँ पे बेसिकली अगर नॉर्मल वाला कार्ड ले लोगे तो सोर्ड, दिल में 3 सोर्ड्स रहते हैं, और दिल में किसी के लिटरली अगर कॉन्शियस लेवल पे फिजिकली आप सोर्ड डाल देंगे तो वो तो मर ही जाएगा ना। एग्जैक्टली जो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमें, जो हम बार बार बोल रहे थे, हालांकि यहाँ पे स्केलेटन कार्ड से हमें पता चल गया था कि ये जो फॉक्स है किसी को मार के भागा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका हमने क्लैरिफायर निकाला तो हमें पता चल गया कि ये सोर्ड जो ये चाकू लेके अपने मुंह में देख रहे हो भाग रहा है, बेसिकली इसने इस चाकू से ही इसके हार्ट में खंजर भोंका है और फिर वो भाग रहा है ये सारे सोर्ड्स को लेके, ताकि वो अपने जिस चीज़ से उसने मारा है ना वो वापस लेके भाग रहा है यहाँ पे। और ये कहाँ पे ये सोर्ड डाला है उसने, गौरव तिवारी के हार्ट में डाला है, यानी कि यहाँ पे उसने मारा है। ओके, अब फिर क्या होता है यहाँ पे इसका क्लैरिफायर दिखाएंगे हम। ओके, यहाँ पे भी लग रहा है जैसे कि किसी ने इसको ब्लैकमेल किया है, ऐसा एक एनर्जी ऐसा क्यों आ रहा है कि इसकी वाइफ को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। अभी यहाँ पे हमने बात की कि इसको एक कैप्टिव में रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि ये जो चिड़िया होता है, चिड़िया है या आउल है एक तरह का, आई थिंक ये हाफ मैन और हाफ आउल था या कुछ इस तरह का था। इट वॉज नॉट आउल, एक्चुअली सम ऑस्ट्रिच और सम काइंड ऑफ एनिमल। ओके, ये इसको लेके उड़ के चला जाता है और इसको गुफा, बहुत बड़ा जो पहाड़ होता है उसमें जो ये चिड़िया सब रहते हैं ना, बड़े से गुफा बना के उसमें इसको डाल देता है। और यहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि ये अंदर में बैठ के कुछ देख रही है। तो आई डोंट नो इफ इसकी वाइफ को कोई ब्लैकमेल कर रहा था या कुछ इस तरह का एंगल है, क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई अपने ही शीशे में ट्रैप्ड हो गया है, अपने ही शीशे में कोई ट्रैप्ड है। ओ माय गुडनेस, डू यू सी दिस, ही वाज स्ट्रैंगुलेटेड, राइट। यहाँ पे हम उसके डेथ की बात कर रहे हैं एंड ही वाज एक्चुअली स्ट्रैंगुलेटेड। उसके गले में एक जो मैंने आपको बताया कि उसके गले में एक ब्लैक कलर का लंबा सा देयर वाज अ दाग ऑन हिज नेक, और ये बिल्कुल उसके डेथ के कार्ड के ही पास ये स्ट्रैंगुलेशन वाले तार आ गए हैं, यानी कि कोई उसको गले में लेके मारा है या उसने मारा है। पर ये 8 ऑफ सोर्ड में तो ये अपने आप में ही टाई कर रही है ना, अपने आप को ही इसने टाई किया है। 8 ऑफ सोर्ड इज ऑलवेज अबाउट यू टाइंग योरसेल्फ। 8 of sword is always about you tying yourself। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई आया है।
ये सोड का कार्ड है, सोड इज़ अ एयर का कार्ड। यहाँ पे देखो ये स्पिरिट तो नहीं है। कॉन्शियस लेवल में कौन एंट्री कर रहा है यहाँ पे? कोई तो एंट्री कर रहा है जिसने एक खंजर भोंका है, लेकिन ये जो खंजर भोंका है उसके हार्ट में नहीं भोंका है, उसका गला दबाया है। क्योंकि एट ऑफ सोड इज नेवर अबाउट एनीबडी एल्स डूइंग यू दिस इज यू योर सेल्फ डूइंग इट, बट दिस इज हैपनिंग आफ्टर दिस। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। पेज ऑफ कप्स फिर से आ गया है, पेज ऑफ कप यहाँ पे भी है। ओके क्या ये दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे यार? किंग ऑफ पेंटिकल्स मून के पीछे फिर से देखो मैं मनी का एंगल, एंड दैट टू ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स। मनी का एंगल भी आ रहा है, एक स्पिरिट का एंगल भी आ रहा है, और यहाँ पे फूल्स की जर्नी स्टार्ट करने की इच्छा। मनी की बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो अपनी एक जर्नी स्टार्ट करेंगे, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसा आ गया, यहाँ पे भी पैसा पैसा आ रहा है, और पैसा आने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एक नॉट सो गुड बट वट एवर इट इज़। यहाँ पे दोनों एंगल्स क्यों आ रहे हैं मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक तो एंगल ब्यूटी का है, एक एंगल पैसे का है, ब्यूटी के साथ पैसे का एंगल आ रहा है, लेकिन एक स्पिरिट का एंगल भी स्ट्रांगली आ रहा है। क्योंकि एयर साइन जो हो, सोर्स जो होते हैं वो एयर एलिमेंट होता है, एंड एयर एलिमेंट इज योर स्पिरिट एलिमेंट। और यहाँ पे जो इसकी इंटेंशन थी कि उसके हार्ट को चीर दो, पर वो जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हुआ है इज थ्रू स्ट्रैंगुलेशन, ही स्ट्रैंगुलेटिंग हिमसेल्फ। मगर यहाँ पे आसपास तो एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ सोर्ड का कार्ड, स्पिरिट स्ट्रैंगुलेटिंग हिम। This is also sword, but he is strangulating himself, not knowing what is he doing. ये है तो सही कुछ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक पैसे का भी एंगल है, यहाँ इन दोनों कार्ड में स्पिरिट का भी एंगल है, इन दोनों कार्ड में स्पिरिट का एंगल आ रहा है, यहाँ पे स्पिरिट का एंगल क्लियरली आ रहा है, लेकिन तो फिर ब्यूटी एंड द बीस्ट का क्या एंगल है यहाँ पे? यहाँ पे तो डेफिनेटली लग रहा है कि कोई बीस्ट ब्यूटी पे नज़र रखे हुए, यहाँ पे भी कोई बीस्ट है। सो देयर इज सम बीस्ट इन दिस लाइफ, इन देयर लाइफ ऑफ दिस फैमिली। पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है यहाँ पे, पैसे का सोल्यूशन है यहाँ पे, लेकिन ये बीस्ट कौन है? ये बीस्ट कौन है? ये कार्ड हमें बता रहा है वो वाला पार्ट, दैट पार्ट ऑफ गौरव तिवारी वेर ही सेड और टू हिज फादर कि ही कैन फील समथिंग अबनॉर्मल और समथिंग। ये चीज़ उसने बताई थी कि कोई उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा करता है, इस तरह से लगता था उसको। ओके ये कार्ड तो ये चीज़ बता रही है, बट बैक ऑफ द डेक में इसमें देखते हैं क्या है। अगेन मनी का एंगल, क्या हो रहा है यहाँ पे? मनी का एंगल है, ये लड़की है, किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने पैसे लिए हैं ये काम करने के लिए क्या? क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं, सामने में तो दिख के लग रहा है कि आप रो रहे हो, लेकिन पीछे में क्या है? डेथ है। ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट नो, दिस इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज। हमें बहुत क्लैरिटी तो नहीं मिल रहा है, दो चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली। एक पैसे का एंगल बहुत ज़्यादा आ रहा है, और पैसे का एंगल ऐसा नहीं आ रहा है कि पैसे की दिक्कत है। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा लग रहा है कि पैसे के लिए कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, somebody is offering you a money, इस डेथ के करने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं आपको।
और फिर बाद में उसके पास बहुत पैसा आ जाता है जिसके कारण वो एक नई जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। ओके, और यहाँ पे भी आप किसी को देख के रो तो रहे हो, हालांकि ये बंदा, आई डोंट नो, आप एक्चुअली इस कार्ड में आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वाई इतना विलाप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो इसका भाई जो है ये खरगोश बन गया है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता। लेकिन जब ये नॉर्मल हो जाता है तो ये डेथ के बारे में क्यों सोच सोच के रो रही है? क्या इसको पता था कि डेथ होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे जो स्कीमिंग हो रही है उसे तो यही पता चल रहा है कि कुछ तो होने वाला है। सोड का कार्ड है तो ये स्पिरिट भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको पता है तो फिर कैसे स्पिरिट हो सकता है? अगर उसको पता है तो स्पिरिट नहीं हो सकता ना, बिकॉज नोबडी विल नो दैट अ स्पिरिट विल कम एंड डू दैट। लेकिन यहाँ पे दोनों बीस्ट है और ये भी बीस्ट है, पर ये भी तो बीस्ट भी तो एक तरह का पक्षी होता है जो हवा में ही चलता है। What about this beast? बीस्ट कौन हो सकता है ये? Okay, what we can do is let's ask the angels straight question. Dear angels, can we please know what is the reason of Gaurav Tiwari's death? We thank you so much for the guidance coming for this question. What is the reason of Gaurav Tiwari's death? 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 Okay. Oh my goodness. यही कार्ड आया है ना, यही कार्ड तो आया है यहाँ पे। खुद से गला उसने ये कर लिया है। दिस इज द रीजन फॉर हिज डेथ, टाइंग हिमसेल्फ। उसने अपनी खुद को ही मारा है। एंड दिस इज द स्पिरिट। ओह माय गुडनेस। ओह माय गॉड। और यहाँ पे पैसे का एंगल फिर से आ रहा है। What all this means यार? Oh God. उसने अपने आप को फांसी लगाया है, ये तो हमको पता चल रहा है क्लियरली। ये क्लियरली पता चल रहा है कि उसने अपने आप को टाई किया, लिटरली टाई किया है। लेकिन यहाँ पे जो टाई कर रहा है ना, ये इसके क्रोज हैं, क्रोज टाई कर रहे हैं। क्या मतलब होगा इसका? क्योंकि एस ऑफ सोर्ड इज अ कार्ड ऑफ एयर एलिमेंट, मगर कितना स्ट्रेंज है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एलिमेंट आता है और उसके बाद ये टावर गिर जाता है, यानी कि इसकी डेथ हो जाती है। कितना स्ट्रेंज है ये। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ऐसे होने से? एक तलवार है यहाँ पे। हाउ इज इट पॉसिबल?
यहाँ ये किसकी तलवार है? पैसे का भी एंगल आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू गेट दिस। ये किसकी तलवार है, मुझे ये जानना है। यहाँ पे ये अपने आप को टाई तो कर रहा है, ये अपने आप को टाई कर रहा है, पर ऐसा देख के लग रहा है कि इसने अपने आप को टाई किया है, लेकिन एक्चुअली देखो तो यहाँ पे क्रोज हैं जो उसके गले में ये सब बांध रहे हैं या फंसाया है इन्होंने। और उसके बाद इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ जस्टिस एंड देन द टावर कम्स डाउन, हिज लाइफ कम्स टू एन एंड। यहाँ पे क्या जस्टिस हो रहा है? वॉट इज द जस्टिस दैट इज हैपनिंग हियर? क्या है ये? दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। एक तरफ तो मनी का एंगल है और एक तरफ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं हमें। ये किसका तलवार है? वी वॉन्ट टू नो ये किसका तलवार है। लेट्स सी इफ वी कैन गेट टू नो ये किसका तलवार है, सो दैट वी कैन हैव सम आइडियाज। यहाँ पे एक चीज़ तो है कि कोई जस्ट oh my goodness, oh my goodness। ये डेविल का तलवार है। some kind of justice for interfering in their world, something like that। पर ये पैसे का एंगल क्यों आ रहा है, ये तो समझ नहीं आया ना हमें। पैसे का एंगल क्यों आया है ये? यहाँ पे भी रस्सी से कुछ पकड़ा है इसने। ये देख रहे हो, ये जो इसने अपने बांधा गला तो उसने खुद ही दबाया है, जो देख के लगता है कि उसने ही दबाया है अपना गला। ओके, अपने आप को फांसी लगाया है, पर उसके आसपास क्रोज थे जो चीज़ों को कर रहे थे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे ये चीज़ है तो ये बीस्ट क्या है? ये एयर साइन है, ये समझ में आ रहा है मुझे। फिर यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी? Why is somebody, I don't know if this lady was scared of something that like that can happen to him. Something like that can happen to him. इसको डर था, यही तो लग रहा है। पर ये है कि ये बीस्ट ने इसको यहाँ भी पकड़ के रखा है, यहाँ पे भी पकड़ के रखा है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये, इफ दिस इज़ अ डेविल्स वर्क, व्हाट इज़ द बीस्ट डूइंग हियर? क्योंकि क्लियरली इस बीस्ट ने इसको पकड़ के रखा है, ये तो समझ में दिख रहा है। यहाँ पे भी पैसे का भी एंगल है। पैसे का एंगल क्या है यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। और एक ये लड़की को क्यों बीस्ट ने पकड़ के रखा हुआ है? कौन है ये बीस्ट? Okay, so I don't know if we are getting two confusing messages just to divert from the main thing, but हमें इस रीडिंग में दो चीज़ें पता, दो तरह के कॉन्ट्रास्ट आंसर्स आ रहे हैं। एक तो आंसर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो सोर्ड किसका है, हमने पूछा है तो ये है,
और यहाँ पे टाई है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला जो थियोरी है उसको सपोर्ट करता है ये आंसर। लेकिन द क्वेश्चन बिकम्स कि ये भी पैरानॉर्मल को सपोर्ट कर सकता है, ये सब पैरानॉर्मल जो थियोरी है उनकी उसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन देन क्वेश्चन व्हाट आई एम नॉट गेटिंग इज़ कि ये जो बीस्ट है, यहाँ पे भी ब्यूटी एंड बीस्ट है और यहाँ पे भी बीस्ट है, इनकी वाइफ को किसी ने ट्रैप किया हुआ है और पैसे का एंगल है। ये दोनों फिर इस थियोरी में कैसे फिट होते हैं ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। एंड मे बी आई विल डू दैट लेटर, बट दिस इज व्हाट आई गेट सो फार। दिस इज व्हाट आई गेट सो फार। तो मैं एक रीडिंग को कंक्लूड करने के लिए, डियर एंजल्स, एनीथिंग वी नीड टू नो अबाउट द होल थिंग, Gaurav Tewari's death, the mystery of Gaurav Tewari's death, anything we need to know about, explore your options. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make a change. All right. क्या है यहाँ पे? ये टर्टल है। How do we get the answer to this? I think ये वाला केस पूरा तो सॉल्व नहीं हो पाया है. We have something over here, but then we also have two other confusing stories to this thing. अगर ये वाली चीज़ है तो बस हमें यही पता चलनी चाहिए थी. इसके साथ हमें एक चीज़ पता चल रहा है, ब्यूटी एंड बीस्ट का भी एक स्टोरी चल रहा है पैरेलल में, और एक मनी का एंगल भी साथ में चल रहा है. ऐसा लग रहा है कि किसी ने पैसे दिए थे ये करने के लिए, पर ये भी लग रहा है कि कौन पैसा दे सकता है, क्योंकि ब्यूटी तो है जो यहाँ पे बीस्ट ने उसको पकड़ के रखा हुआ था. तो ये चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या है नहीं है. यहाँ पे अगर देखो तो अगर हम मान लेते हैं कि ये बीस्ट जो है ये फिजिकल वर्ल्ड का आदमी है, ये कोई लवर हो सकता है इस ब्यूटी का, तो ये डेविल वो भी हो सकता है. ओके, अगर हम देखें तो ये डेविल, क्योंकि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी तो डेविल्स रहते हैं ना, आई मीन नेचर वाइज, तो वो चीज़ें हो सकती हैं. अब हम जैसा भी माने इसको, ये डेविल क्वाइट लिटरली फिजिकल वर्ल्ड का भी हो सकता है, जो कि ब्यूटी पे नज़र रखा हुआ था और उसको ब्लैकमेल कर रहा था, और फाइनली उसने मौका लेके ये सारी चीज़ें कर दी हैं. मगर अगर ये करेगा तो फिर व्हाट अबाउट द सुसाइड थियरी? डू यू अंडरस्टैंड दैट? अगर ये कोई इंसान ने किया है तब तो वो पता चल जाएगा ना कि उसको किसी ने मारा है. हाउ विल इट बी? बिकॉज उनका जो डेथ था दैट वाज लाइक, पुलिस ने बोला कि ये सुसाइड, इट इज़ सुसाइड केस. तो अगर कोई दूसरा, अगर ये बीस्ट है, मान लो कि ये ब्यूटी का लवर है और ये आके ये सब काम करता है, तो इट विल नॉट बी अ सुसाइड. ये चीज़ें हैं तो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं. हमको यहाँ पे एक चीज़ तो ये पता चल रही है, पर उसके साथ एक और पैरेलल स्टोरी चल रहा है जिसके कारण हम क्लियरली तो पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे. So yeah, the case is not really solved, but this is what the case is, guys. If you have any additional information about this case, you can definitely let me know that. And thank you so much for watching, and I will see you again. Bye for now.